1 by root 2, 1 by root 3, 1 by root 4, up to 1 by root n plus dot dot dot. This is a finite series, and the nth term is an is equal to 1 by root n. Okay. So here the Sn is equal to 1 plus 1 by root n plus 1 by root 2, 1 by root 3 plus dot 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 up to 1 by root n, and it is greater than 1 by root n plus 1 by root n plus 1 by root n up to n times. This sum Sn is greater than this, and we can write it as root n by root n. This is, am I replacing 1 with 1 by root n, 1 by root 2 by 1 by root n for every term up to n times, and this summation will always be less than this summation. Okay, and if we add this, it will become this. This is equal to root n. So this Sn is greater than root n, and if we take the limit n tends to infinity, Sn is greater than limit n tends to infinity root n, which is equal to infinity. Okay. So यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि Sn से ये सीरीज है, फाइनाइट सीरीज, जिसके लिए हम इसे एक छोटा सीरीज ले रहे हैं. ठीक है, इस सीरीज के बदले एक छोटा सीरीज ले रहे हैं, और इसका सॉल्यूशन देखना है कि रूट n है. तो जो छोटे वाले सीरीज का अगर हम लिमिट निकाल रहे हैं तो इट इज गोइंग टू इंफिनिटी. तो कोई भी सीरीज अगर मान लो कि अगर छोटा सीरीज अगर मतलब हमारा इंफिनिटी को डाइवर्ज कर रहा है, तो उससे जो बड़ा सीरीज होगा वो ऑब्वियसली उससे वो भी डाइवर्ज करेगा. ठीक है. So because of this statement, this fact, this is also limit n tends to infinity Sn also divergent. ठीक है. तो हमारा जो कन्वर्स स्टेटमेंट था, whether B implies A or not, so it is not possible in our case, because why? कि अगर हमारा लिमिट n इसका nth टर्म मींस जो इसका ये स्टेटमेंट है, in this series we can see about this statement, limit n tends to infinity. What is this? 1 by root n is equal to 0. For this series, our first statement is true. 1 by root n अगर n tends to infinity, it is 0. But the next statement is not followed with this. So we can call it as the converse is not true. The converse is not true. Okay. Means if summation n is convergent, implies limit n tends to infinity an equal to 0. First, second, limit n tends to infinity an is not equal to 0 implies summation an is divergent, and we cannot say about if limit n tends to infinity an is equal to 0. Can't say anything about the series cause since converse of 1 is not true always. Okay, these are the three conclusions we can infer from that. So this is all for today. Solve the problems using this result from the book B.S. Grewal Infinite Series, and we will meet on Friday. And from now onwards,
after 2 minutes I will start the vector space topic for CS and IT branch. Okay, so now you can go. So I hope Akashdeep, Preeti Chaudhary. Yes, sir. Good morning, sir. Anything you need to ask? You wrote SN minus SN minus 1 मतलब n टर्म और उससे पहले का n minus 1 टर्म 0. That is summation is equal to K for a convergent series. तो लास्ट टर्म तो बचेगा ना, तो आप वही उसी लास्ट टर्म पे लिमिट आया ना हम लोग. अच्छा, अगर मान लो हम लोग अगर n टर्म्स तक अगर ऐड करते हैं, उसमें से अगर हम घटा देते हैं उसके पहले टर्म तक का सारा एलिमेंट, तो हमारे पास लास्ट टर्म बचा. क्लियर? ठीक है. हेलो. हाँ, तो अगर हम लोग जब जो लिमिट लगाएंगे, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी Sn, ठीक है, देखो हमारे पास क्या है, जो nth टर्म है दिस इज इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1. ये तो क्लियर है. जब हम इसमें लिमिट लगाते हैं Sn माइनस Sn माइनस 1, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये जो लिमिट है ये कैसे हो जाएगा, दिस इज k माइनस k. क्यों? क्योंकि अगर कोई कन्वर्जेंट सीरीज है उसका सम अप टू n टर्म भी कन्वर्ज करेगा एक नंबर k पे, और उसका n माइनस टर्म भी सम जो है कन्वर्ज करेगा उसी नंबर k पे. ठीक है, क्योंकि दिस इज कन्वर्जेंट और दिस इज इक्वल टू 0. ओके. एंड सर आप लिखे कि अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट नहीं है तो डाइवर्जेंट होगा, जरूरी थोड़ी ना वो ऑक्सिलरेटरी. हाँ, मैंने नॉट कन्वर्जेंट लिखा है. इन द जब ऑसिलेटरी और डाइवर्जेंट को बेसिकली
नॉट कन्वर्जेंट कहते हैं इसको, यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं इट इज नॉट कन्वर्जेंट। ठीक है, वो बिल्कुल सही बात है। ठीक है, इन जनरल जो ऑसिलेटरी या डाइवर्जेंट है दोनों हमारे लिए यूजलेस होता है इन द एरर एनालिसिस, इन द स्टडी ऑफ दिस कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस प्रोसेस। अगर कोई भी सीरीज जो है, अगर वो चाहे वो डाइवर्जेंट हो चाहे ऑसिलेटरी हो, बोथ आर नॉट यूजफुल फॉर अस, ओनली अगर ये कन्वर्जेंट हो तभी। ठीक है, तो इस वजह से कभी कभी ऑसिलेटरी को भी डाइवर्जेंट लिख दिया जाता है, कई सारे बुक्स में ऐसा होता है। ठीक है, क्योंकि वो कंसीडर करते हैं कि ऑसिलेटरी भी डाइवर्जेंट है एक तरह से। So this is the for more precise we can call it as non-divergent, non-convergent. ठीक है, ओके प्रीति। सॉरी सर, आप लास्ट वाला एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए, समझ नहीं आया। लास्ट वाला ये सेकंड नंबर या हाँ, देखो this is the statement as I already told you that what is it, this is A implies B, the contraposition of this is not B implies not A, this is the same statement। अगर ये true है तो it is always true, अगर ये true है तो ये भी हमेशा true होगा। ठीक है, अगर A implies B अगर true है जो कि हमारा थ्योरम कहता है, तो not B implies not A हमेशा होगा ही होगा। ठीक है, लेकिन कन्वर्स जो है B implies A, ये कोई जरूरी नहीं है, नॉट ऑलवेज। ये तो पता है। क्लियर? ठीक है, दिस इज द स्टेटमेंट, दिस इज कॉन्ट्रापोजिटिव स्टेटमेंट, दिस इज कन्वर्स स्टेटमेंट। इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिकल लॉजिक दिस इज कॉन्ट्रा पॉजिटिव एंड दिस इज व्हाट, कन्वर्स। कन्वर्स मींस B implies A, not always true। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। okay, so now I will start the class for computer science and IT students। The vector space। So in the last class we have seen about field F with a binary operation plus and dot, and it is satisfying 5 properties with respect to F plus and 5 properties A1 to A5 and M1 to M5 with respect to dot। Okay, and one distributive property A dot B plus C equal to AB plus AC। अगर ये 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं, और ये 5 प्रॉपर्टी में क्या क्या था, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स एंड कम्यूटेटिव। These are the 5 properties। जब हम प्लस के रिस्पेक्ट में करेंगे पांचों, तब भी इस सेट F पे सेटिस्फाई कर रहा है, और जब हम डॉट के रिस्पेक्ट में करेंगे मल्टीप्लिकेशन, तब भी ये पांचों सेटिस्फाई करें, प्लस एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करें। तो हम कहते हैं कि वो एक क्या है, फील्ड। ठीक है, और उसका स्ट्रक्चर इस तरह से लिखते हैं। We have seen examples of some field as the set of real number, the set of rational numbers, the set of complex numbers। Okay, and now together with this vector space, from computer science and IT students, if there is any doubt with respect to the field, you can ask it right now, raise your hand। So I suppose there is no doubt regarding this, we have to only
think about this. So the field is used vector space. In the definition of vector space, field are equivalent to or called scalars. Okay, and this is set of vectors V, and the elements of this are called vectors. Okay, together with this, if VF is a vector space or not satisfied by A1 to A5, again, if V with respect to plus, there are two notations, plus vector addition and dot circle scalar multiplication. So the same type of properties V with this should satisfy A1 closure, A2 associated, A3 identity, A4 which is zero vector in this case, A4 inverse, A5 commutative. Okay, and with this, this is regarding this vectors addition and scalar multiplication. There are 5 properties. So S1 the filter, S1, S2, S3, S4, S5. So क्या है? C into A, sorry, A into U dot circle U belongs to V. A dot B is associated तीसरा A dot U plus B is distributive. I have already did in the last class. A plus B dot U about this, and the last the identity element I dot U is equal to U. Okay. So with respect to vector addition, it should satisfy these 5 properties, and for the scalars, scalar multiplication, it should satisfy these 5 properties. This I already have did in the last class, and we have seen the examples of vector spaces like Q over Q, R over Q, R over R, and likewise. Now we will see some other examples like R2 over R. This is a vector space, and the elements of this vector space are like X comma Y. This belongs to this R2. It's 2 tuple element. Similarly, R3 over R, and the elements will, this is a vector space,
An element will look like x, y, z belongs to this R3. This will form a vector space, and for any two vectors, this vector addition means this plus addition will be like x, y plus x1, y1 is equal to x plus x1 into double form x plus x1 and y plus y1. This is vector addition and scalar multiplication. Will be like some k into xy is equal to kx ky. This is the definition of vector addition and scalar multiplication in the vector space R2 over R. मतलब यहाँ पे क्या है? The set of vectors is R2 and field is R. Okay. इसके जो सारे प्रॉपर्टीज, पांचों प्रॉपर्टीज हैं, वो तुम लोग देख सकते हो, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स. इन दिस रिस्पेक्ट यहाँ पर जब वेक्टर एडिशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी क्या होगा? will be 0 0 belongs to this R2. This will be the identity element. And inverse for any element x, inverse for any element x y, there exists an element minus x minus y belongs to R2 such that x y plus minus x minus y is equal to 0 0, which is the identity element. ठीक है, और बाकी इसमें ये कम्यूटेटिव होता ही है, मतलब कम्यूटेटिव x y plus x1 y1 is equal to x1 y1 plus xy. ठीक है, तो कम्यूट कर सकते हैं एडिशन पर्पस में. So this is a set of vectors which satisfy all the properties of vector addition, and scalar multiplication also we can check and verify it will satisfy the conditions for scalar multiplication also. So this is a vector space similarly for R3 over R, the elements are x, y, z belongs to R3. Vector addition will be like x, y, z plus x1, y1, z1. You can interpret from that also x plus x1, first tuple, y plus y1, second tuple, z plus z1. Okay, so this also belongs to R3. So it is closer with respect to vector addition. And likewise, you can say here identity element will be 0 0 0. And often we write it like this, which belongs to R3. We have already studied in vector calculus that 0 0 means in a vector form. Any vector quantity in three-dimensional space x, y, z as a position vector. This is 0 vector situated here, 0 0 0, and any vector position vector we can write. And R3 over R we could imagine that this representation can be analyzed, or we can do the calculations with this structure, and we call this as a vector space. Okay, so this is the vector addition. Scalar multiplication will be dot scalar
multiplication. It is any scalar k belongs to the field and any vector x, y, z belongs to this R3. K times x, y, z is equal to kx, ky, kz belongs to R3. Okay, so this is scalar multiplication is also, we can verify all the definitions, will satisfy this vector space. So if you have any problem, you can ask it right now. If you have any confusion in the vector space R2 over R and the vector space over R3 over R, do you have any question? Pulkit Aryan. Hello. Hello. Yes. Good morning, sir. हाँ, good morning बाबू. क्या चाह रहे हैं सर? वो जो 4th नंबर में सिंबल लिखे सर, वो क्लियर नहीं हो रहा. वो IR लिखा हुआ है कि R में कट किया हुआ है सर, या 2nd नंबर पर भी जो है सर? ये यस सर. सर वो IR लिखा हुआ है कि R. मैंने आपको बताया था, दिस इज अ वेक्टर स्पेस. Q इज अ सेट ऑफ रैशनल नंबर्स. ये क्लियर है? यस सर. सो अगर Q को अगर वेक्टर सेट ऑफ वेक्टर्स लेते हैं और फील्ड को भी मतलब Q ही लेते हैं, मतलब दोनों सेम सेट ऑफ वेक्टर्स भी Q है और फील्ड भी हम लोग Q ले रहे हैं, और हमें पता है कि Q जो है वो प्लस और डॉट के रिस्पेक्ट में, Q जो है वो प्लस और डॉट के रिस्पेक्ट में फील्ड बनाता है, मतलब फील्ड के सारे प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है. यूजुअल प्लस, एडिशन इन रैशनल नंबर, मल्टीप्लिकेशन इन रैशनल नंबर, तो ये फील्ड बनाता है. तो हम लोग इसी को ही सेट ऑफ वेक्टर्स भी ले रहे हैं. तो अगर हम लोग इस तरह का स्ट्रक्चर का डिफाइन करते हैं फॉर अ वेक्टर स्पेस, तो वेक्टर स्पेस के सारे डेफिनेशंस को ये सेटिस्फाई करेगा. ये क्लियर है? यस सर. तो सिंबल क्लियर नहीं है सर, वो Q में क्या कट है कि सिंबल क्लियर नहीं है. ये भी हम लास्ट क्लास में बताए थे. सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, इसको जब रिप्रेजेंट करते हैं तो हम लोग इस तरह से दो बार ऐसे करते हैं और ऐसे लिखते हैं. ठीक है? सेट ऑफ इंटीजर्स को जनरली ऐसे लिखा जाता है और ऐसे लिखा जाता है. सेट ऑफ इंटीजर्स. यस सर. जब रैशनल्स के बारे में बात करते हैं, इट इज अ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन. क्यों लिखते हैं और ये कट करते हैं. रियल नंबर, इसके लिए R के लिए दो बार यूज करते हैं और ऐसे लिखते हैं. एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स C लिख के एक बार ऐसे कट करते हैं. ये रिप्रेजेंट करता है कि दीज आर सेट ऑफ दिस नंबर्स. क्लियर? यस सर. ओके. ओके सर. थैंक यू. थैंक यू सर. Any question about this R2 or R3? बिट्टू कुमार. हेलो. हाँ, गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. सर वो R3 ओवर R में जो आइडेंटिटी वाला वो समझ नहीं आया, एक बार क्लियर कर दीजिए ना. अच्छा ठीक है. वही सर, वही सी स्लाइड में. अच्छा देखो, ये जो आइडेंटिटी एलिमेंट है, जब हम लोग वेक्टर एडिशन पे बात करते हैं तो क्या कहते हैं कि अगर किसी एलिमेंट को ले x, y, z जो R3 का एलिमेंट है प्लस 0 0 0, अगर हम किसी वेक्टर के साथ कोई एलिमेंट को ऐड करें और सेम हमको यही वेक्टर मिल जाए, तो इस एलिमेंट को आइडेंटिटी एलिमेंट कहा जाता है. कि हम, और ये एलिमेंट सबके लिए एप्लीकेबल है. कोई भी एलिमेंट हम R3 का उठाते हैं, मतलब वेक्टर सेट ऑफ वेक्टर्स का उठाते हैं और उसके साथ अगर हम वेक्टर एडिशन तो वो फिर से वही एलिमेंट है, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं? आइडेंटिटी एलिमेंट. ठीक है? और जो हमारा नोटेशन था प्लस का, ये सर्कल प्लस, इट इज डिफाइंड हियर विद दिस एडिशन. मतलब ये जो है वेक्टर एडिशन, वो सिंपल एडिशन नहीं है एक तरह से. ये क्या है? कंपोनेंट वाइज एडिशन है. अच्छा. इससे फर्स्ट कंपोनेंट के इससे फर्स्ट कंपोनेंट से ऐड कर रहे हैं, सेकंड को सेकंड, थर्ड को थर्ड से. तो इस वजह से ये हम लोग जनरल नोटेशन लेते हैं ये, और मल्टीप्लिकेशन के लिए ये,
for a vector space V plus circle and dot circle, ठीक है, और तब हम लोग डिफाइन करते हैं वेक्टर स्पेस को। इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल R3 पे हमारा प्लस जो है कंपोनेंट वाइज एडिशन है और मल्टीप्लिकेशन क्या है, से यही कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन है। यहाँ पे एक तरह से ये है, दिस इज अ स्केलर एंड दिस इज डॉट सर्कल, एंड नाउ हम लोग इसको कह सकते हैं कि इसको सिंपली स्केलर मल्टीप्लिकेशन करना है तो दिस k x y z एंड कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ये क्लियर है? यस यस, थैंक यू। ठीक है, इन जनरल हम लोग ये स्पेशल नोटेशन लेते हैं। सिमिलरली एक फोर्थ एग्जांपल देखते हैं। M as a matrix M cross N with real number, set of vectors जो है वो matrices है, ठीक है। Example M cross N is a Aij M cross N, मतलब क्या है, this is a structure like A11 up to A1n, AM1 up to AMN, AMN. This is a matrix of M cross N size, ठीक है। AM इसको A ले लेते हैं, ठीक है। तो A जो है will be an element of this M cross N, clear? Now यहाँ पे जो वेक्टर है, सेट ऑफ वेक्टर्स का जो एलिमेंट है उसका स्ट्रक्चर कैसे है, मैट्रिक्स के फॉर्म में, और जो फील्ड है मींस यहाँ पे ये जो है ये फील्ड है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे वेक्टर एडिशन का बात करें तो A plus B will be look like how? A will be this, this will be a matrix of M cross N with element A11 to A1n, AM1 to AMN, ठीक है। प्लस एक मैट्रिक्स B होगा B11 to B1n, BM1 to BMN होगा, और ये जो वेक्टर एडिशन है यहाँ पे सिंपली मैट्रिक्स एडिशन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लियर। और इसमें जो एडिशन डिफाइन कैसे है मैट्रिक्स में, वी ऑलरेडी नो अबाउट द एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, कि इसमें भी कंपोनेंट वाइज जो जिसका मतलब कि प्लेस है उसको उससे ऐड करेंगे, दिस विल बिकम A11 plus B11, A1n plus B1n, AM1 plus BM1, AMN plus BMN. This is the vector addition in case of this vector space, ठीक है। Similarly we can define scalar multiplication also, K dot circle A is equal to, क्या हो जाएगा, ये K मल्टीप्लाई होगा सारे एलिमेंट से, it will become K times A11, K times A1 and K times AM1, K times AMN, ठीक है। और it remains with the size of M cross N. This is the scalar multiplication in this example of vector space. Is it clear to everyone? Any questions? So you can easily verify the addition of matrices satisfy closure property, मतलब कि दो मैट्रिक्स को अगर हम ऐड करेंगे तो again will be the element of this M cross N set of matrix. अगर हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं तो इट इज यस, इट इज एडिशन ऑफ मैट्रिसेस इज एसोसिएटिव। अगर आइडेंटिटी एलिमेंट देखें तो इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, एडिटिव आइडेंटिटी। प्लस के रिस्पेक्ट में अगर हम किसी भी मैट्रिक्स से ऐड करते हैं 0 व्हिच इज 0 0 0 0 0 0 0 0, A11 A1n
AM1 AMN, अगर इसको ऐड करें तो अगेन हमको यही मैट्रिक्स मिल जाएगा। सो दिस इज आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। क्लियर? और अगर हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन का बात करें, हाँ ये हो गया। एंड इनवर्स क्या होगा इसमें? फॉर एनी एलिमेंट a there exists a minus a, which will give us this identity element, and this is we call as the inverse of this matrix A. ठीक है? Now, any question till now? So we have seen several type of vector spaces rather than our simple notations real and real and rational numbers, set of n tuple elements. Means if we have a space of R2 over R is a vector space, R3 over R as a vector space, we can think of Rn over R as a vector space where n is any natural number. ठीक है? इस वाले एग्जांपल में हमारे एलिमेंट्स कैसे होंगे? x1 x2 up to xn belongs to this Rn. ठीक है? आइडेंटिटी एलिमेंट कैसा होगा? 0 0 0 and tuple belongs to Rn. This will become the identity element, and inverse will be minus x1 minus x2 dot dot minus xn belongs to Rn. For this inverse, of this element, and likewise we can say see about the scalar multiplication also. K times this x1 to xn is equal to kx1 kxn. This also belongs to this Rn. ठीक है? So this is one another vector space. Now let us discuss about subspace. Subspace के नाम से क्लियर हो रहा है कि मतलब कि it is a subset of some space. Okay, it is subset of vector space and vector space in itself. मतलब क्या है कि अगर हम S कहें कि अगर सबस्पेस है, so it is a subspace of a vector space V over R, sorry, over field F. ठीक है? पहली बात तो ये मतलब कि इस तरह से ठीक है, given a vector space V over R F. ठीक है? If S is a subset of V, V जो हमारा क्या सेट ऑफ वेक्टर्स है उसका सबसेट ले सकते हैं, तो S will also be a set of vectors which is the subset of V, and if S is also form a vector space over F, then S over F is called subspace of B over F. ठीक है? मतलब कि हमारा क्या है, S जो है वो सबसेट ऑफ द सेट ऑफ वेक्टर्स है, एंड ये इटसेल्फ S जो है वो सारे डेफिनेशंस जो है वेक्टर स्पेस के ओवर फील्ड F जो है सेटिस्फाई करता है। तो हम कहेंगे कि SF जो है वो सबस्पेस है वेक्टर स्पेस B ओवर फील्ड F का।
ठीक है, is it clear in the definition? Let's see some example of vector space. जैसे अगर मान लो ये R2 over R है, this is our example of vector space P over F. तो हमारा S over F क्या होगा? Let us suppose कि मतलब हमको this is what R2 is what set of all elements x y belongs to such that x and y belongs to R. R2 का डेफिनेशन क्या होता है कि हमारे पास टू टपल एलिमेंट है x and y such that ये दोनों x और y जो है वो रियल नंबर के एलिमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। तो हम लोग सबसेट S ले सकते हैं, S equal to such that x, 0 such that x belongs to real number. देखो ये जो है S, this is a subset of this. क्यों? क्योंकि हम लोग y की जगह पे हम लोग 0 ले रहे हैं, सबसेट होगा। अगर हम लोग चेक करें this S over this R, it will form a vector space itself. Here S is a subset of R. ये क्लियर है क्यों सबसेट है? क्योंकि हम लोग y के जगह पे सिंपली 0 ले लेंगे, ठीक है। और हम लोग देखेंगे इसका हर एक एलिमेंट जो है वो R2 में है, so that's why we can call it as S is a subset of R2 first, and second जो ये सबसेट है ये itself form a vector space over R, so we can call it as this S is a subspace of this SR is subspace of R2 over R, ठीक है। Any question about this example of subspace? Okay, so let us see one another example. Let us suppose a vector space of R3 over R, and it is defined as x, y, z such that x, y, and z belongs to real number. This is the definition of R3 over R. अगर हम यहाँ पे इस तरह का एक सबसेट लेते हैं S is equal to x, y, x 0 0 such that x belongs to R. Here S is a subset of R3. ये तो है क्लियर पहला। और दूसरा अगर देखा जाए कि अगर हम लोग इसको चेक करें कि whether this S form a vector space over, we have to check whether if S forms a vector space over R or not, ये हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो वेक्टर स्पेस का डेफिनेशन में क्या कहते हैं कि ये सारे जो प्रॉपर्टीज थे A1 x 0 0 plus y 0 0 is equal to x plus y 0 0 belongs to S, ये तो है A2 एसोसिएटिव। चेक कर सकते हैं ये एसोसिएटिव क्यों होगा। A3 कम्यूटेटिव, सॉरी आइडेंटिटी। So any x 0 0 addition with 0 0 0 will give the again this same number. So this is the identity. Element A4, the inverse x 0 0 plus minus x 0 0
gives 0 0 0, मतलब कि for every element we have another element corresponding another element such that the addition of these two vectors will give us the identity element. So this is inverse and A5 commutative property. X 0 0 plus y 0 0, this is equal to y 0 0 plus x 0. Okay, so ये जो सबसेट हमने लिया, ये पांचों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, जो कि हमारा वेक्टर स्पेस का डेफिनेशन था. ओके, सेकंड क्या है? स्केलर मल्टीप्लिकेशन. तो हम लोग देख सकते हैं कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन, अगर हम कोई भी सेट ऑफ स्केलर अगर लेते हैं R से, तो इसको अगर मल्टीप्लाई करें S के एलिमेंट से, तो वो सारे स्केलर मल्टीप्लिकेशन का भी सेटिस्फाई करेंगे. ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द मेथड टू चेक वेदर अ सबसेट इज अ सबस्पेस और नॉट by going through every single definition of the vector space operation whether it is satisfied or not. ये एक तरीका है. दूसरा हमारे पास क्या तरीका है कि अगर मान लेते हैं कोई भी हमारे पास सबसेट है ले लेते हैं वेक्टर स्पेस का, और हमें डायरेक्टली चेक करना है कि whether it is a subspace of that vector space or not, तो हमारे पास एक रिजल्ट है कि if VF is a vector space and W or S is a subset of V, and if S is a subset of V, S is non-empty subset of V. यहाँ पे non-empty बहुत इंपॉर्टेंट है. S जो है non-empty नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट रहना चाहिए. S is a subset of under subset of V under composition of V then S is a vector space over F if and only any vector W1 W2 belongs to S implies W1 plus W2 belongs to S, and any C belongs to F and W belongs to S. C into C dot circle W belongs to S. यहाँ पे ये जो प्लस है वो बेसिकली वेक्टर एडिशन है. V with this vector addition and scalar multiplication, the same notation I am using for S also, for under the same composition. मतलब कि जो V में जो कंपोजिशन हम यूज कर रहे हैं इस ऑपरेशन प्लस का वेक्टर एडिशन का, सेम इसी कंपोजिशन से अगर ये दो एलिमेंट में S का निकालते हैं, कंपोज करते हैं और उसमें देखते हैं कि इसका जो आउटपुट एलिमेंट है अगर वो भी इसी सेट में बिलोंग कर रहा है, और अगर फील्ड का कोई एलिमेंट लेते हैं और अगर देखते हैं कि अगर ये इसके साथ अगर स्केलर मल्टीप्लिकेशन का जो ये है वो अगर जो आउटपुट एलिमेंट है वो अगेन अगर इसमें करता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि देन ये इफ एंड ओनली कंडीशन है कि अगर मतलब कि S अगर ये सबस्पेस है और यहाँ पे B है, F अगर S जो है वो सबस्पेस अगर है, सॉरी ये B is a vector subspace
of BF if and only if, तो हमारे पास ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो ट्रू होंगे। मतलब कि अगर S सबस्पेस है B का तो ये दोनों ट्रू होगा, और इफ एंड ओनली इफ का मतलब क्या है कि अगर ये दोनों ट्रू होते हैं तो S जो है वो सबस्पेस होगा BF का। ठीक है, एनी डाउट? इन दोनों स्टेटमेंट्स को एक साथ हम लोग करके लिख सकते हैं इन अ सिंगल स्टेटमेंट कि अगर C into C dot W1 plus W2 is equal to C W1 C W2 belongs to S। मतलब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की तरह, मतलब इन दोनों स्टेटमेंट को एक स्टेटमेंट में लिखते हैं कि किसी भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन अगर करते हैं दो वेक्टर एडिशन के साथ, जिसका मतलब कि ये है C with W1 C with W2 वेक्टर एडिशन, अगर ये इस S में अगर बिलोंग करता है तो this S will be a subspace of S will be subspace of BF। मतलब क्या है कि यहाँ पर एक सिंगल प्रॉपर्टी से हम लोग चेक कर सकते हैं कि वेदर कोई जो सबसेट है वेक्टर स्पेस का वो खुद में स्पेस होगा कि नहीं होगा। ठीक है, एनी क्वेश्चन? सो लेट्स सी सम एग्जांपल्स फॉर दिस। We have already seen this is the last page. So we have already seen about this example is R3 over R। दो तरीका हमारे पास सबस्पेस चेक करने का क्या है कि मतलब हम लोग एक तो डेफिनेशन के थ्रू जा सकते हैं और दूसरा हम लोग चेक कर सकते हैं whether this thing is happening in this subset or not। So for R3 over R, अगर हम एक सबसेट लेते हैं S which is equal to x0 0 x belongs to R, S is a subset of R3 obviously। तो हम लोग सिंपली चेक करेंगे, दो एलिमेंट लेते हैं इसका K dot x0 0 plus y0 0 is equal to K times x0 0 plus K times y0 0, which is equal to kx plus ky 0 0, and again this is an element of this S। ठीक है, where K is the element of real numbers of the same field of the vector space R3, और ये दोनों जो एलिमेंट है x0 0 and y0 0 is the element of S। हमने क्या किया, एक स्केलर लिया, दो वेक्टर लिया और ये कंडीशन चेक कर रहे हैं कि ये टाइम्स फर्स्ट और सेकंड वेक्टर एडिशन जो है जो फाइनल आउटपुट होगा वो मतलब S में बिलोंग कर रहा है कि नहीं। तो इसका स्ट्रक्चर में क्या है, पहला जो एलिमेंट ऑफ दिस थ्री टपल इज नॉन जीरो एज इन द डेफिनेशन ऑफ दिस, ये नॉन जीरो होना चाहिए, एंड दिस kx plus ky is belongs to real number, क्योंकि x और y और k तीनों रियल नंबर है तो उसका जो ऑपरेशन का आउटपुट होगा वो भी रियल नंबर ही होगा। So that's why this element is again in S, so we can directly call that S over R is subspace of R3 over R। ठीक है, any question in this?
Any doubt you can ask? Raise your hand if you have any problem. So अगर यहां तक अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू द विजुअलाइजेशन पार्ट ऑफ दिस वेक्टर स्पेस एंड वेक्टर सबस्पेस. So we have seen S x0 0 x belongs to R is a subspace of R3 over R. अगर हम S1 x2 को डिफाइन करें ऐसे xy 0 x belongs to xy belongs to R is a subspace of R3 over R. You can check whether this first and second component is non-zero and third component is zero. It is also a subspace of R3. And this is a notation delta equal to for showing this is a subspace of this. Also S0 0 0 0 element. This is a subspace of R. This is a subset of R, and this is also form a subspace of R. Okay, and the last thing R3 over R is also a subspace. We can call it as a subspace of R3 over R. क्योंकि ये खुद का तो सबसेट है ही, ठीक है? This is one. You can call it 1, 2, 3, and this 4. Means इस R3 का जो है लगभग 4 सबस्पेस है. टोटल नंबर ऑफ सबस्पेस कितना हुआ? 4. एक तो सिंपली अगर 0 एलिमेंट ले लेते हैं, इसका वेक्टर 0 वेक्टर ले लेते हैं तो इसका सबस्पेस का, इसका अगर सिंगल 0 ले रहे हैं तब इसका एक सबस्पेस का 2 ले रहे हैं तब, और जब 3 का तीनों ले रहे हैं तब इसका टोटल नंबर ऑफ सबस्पेस इज 4. Now in a 3-dimensional space, with x component, y and z, we can represent this R3. Okay, we can represent this R3 in 3-dimensional space. Now this S1 will look like what? Can anybody tell me? कोई भी सबसेट जो है जो इस तरह के कंपोनेंट का होगा x y x0 0, ये किस तरह का होगा? बिट्टू कुमार सर एक्स एक्सिस में x एक्सिस बिल्कुल करेक्ट है. x एक्सिस जो है वो इसमें y और z जो है वो 0 है, ठीक है, और ये क्या कहते हैं जो सबस्पेस है इसका है, ठीक है. यस. सिमिलरली अब बताओ S2 जो है वो कैसा क्या होगा? XY प्लेन में. यस, दिस विल बिकम द XY प्लेन, और ये प्लेन क्या है वो ओरिजिन से कट करके जा रहा है, ठीक है, और इस वजह से ये इसका सबस्पेस हुआ. और जब हम पूरे के पूरे R3 को ले रहे हैं तो क्या होगा? ये पूरा का पूरा 3-डायमेंशनल स्पेस है. और एक और जो वेक्टर इसका है वो सिंपली ये ओरिजिन है 0 0 0, जो 0 वेक्टर है ये खुद में एक वेक्टर स्पेस है, ठीक है. तो इन दोनों वेक्टर स्पेस को हम लोग कहते हैं 3 और 4 को ट्रिवियल. ट्रिवियल क्यों? क्योंकि किसी भी वेक्टर स्पेस में कम से कम 0 वेक्टर तो होगा ही होगा. वेक्टर एडिशन के लिए जो आइडेंटिटी एलिमेंट है, और वो खुद में जो वेक्टर स्पेस है, तो ये दोनों जो सबस्पेस है इन दोनों को हम लोग ट्रिवियल सबस्पेस कहते हैं. और इसके इतर अगर इसके अलावे अगर हमारे पास कोई इससे छोटा सबस्पेस मिल जाता है, आइडेंटिटी कहते हैं 0 वेक्टर को छोड़ के और खुद को छोड़ के, तो हम लोग इसको कहते हैं कि मतलब कि नॉन ट्रिवियल वेक्टर स्पेस, नॉन ट्रिवियल सबस्पेस, ठीक है.
अच्छा देखो, इसके बाद एक ध्यान से बात सुनो कि अगर मतलब हम लोग, हमारे पास ये R3 का जो एग्जांपल है, R3 ओवर R का, अगर इसके मतलब सिर्फ इतने ही सबस्पेस होंगे क्या कि और भी हो सकते हैं? एनीवन? हमारे पास R3 के ये 4 सबस्पेस हैं, क्या इससे और भी ज्यादा सबस्पेस हो सकता है? थिंक एंड टेल मी वेदर इज देयर एनी पॉसिबिलिटी कि इसका और सबस्पेस हो भी सकता है कि नहीं हो सकता है? दिस इज अ होम मींस think if R3 over R has any other subspace. हेलो, कल वाला टाइप कर दिया था, खाली प्रिंट आउट निकाल दिया था, उसमें लिखा था कि इसको आपको क्या करना है। अच्छा ठीक है, पूछ लेंगे। ठीक है, raise your hand if you can think of any subspace of R3 over R except these 3 subspace, these 4 subspace. Raise your hand if you have any idea about thinking. आप लोग सोच सकते हैं, इसको बहुत ही आसान है। अच्छा देखो, हमारे पास वेक्टर स्पेस जो है 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, ये तो हमें दिख रहा है कि 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम देख सकते हैं। इसमें जो भी सबस्पेस हमारा आ रहा है, जैसे कि ये हम ये सब सबस्पेस लिया, ये क्या है? ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और ये स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास कर रहा है। ओरिजिन से पास कर रहा है मतलब कि क्या, जीरो वेक्टर जो है इस स्ट्रेट लाइन में है, ठीक है। मानते हैं ये एक्स एक्सिस है जो इसको डिफाइन कर रहा है। सिमिलरली इस तरह का हम अगर सिंपली y एक्सिस ले लें तो नहीं हो जाएगा। y एक्सिस ले लेते हैं और उसमें 0 रहेगा, मतलब क्या होगा, इसके जगह पे 0 y और 0 सबस्पेस होगा। एनीवन रेज योर हैंड। और अगर इसी तरह से अगर हम z एक्सिस ले लें, ये भी एक सबस्पेस होगा। बिट 2 यस सर, और प्लेन्स भी ले सकते हैं y z z x। देखो इन जनरल जब हम लोग x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस को ले सकते हैं एज अ वेक्टर सबस्पेस, तो कोई भी स्ट्रेट लाइन जो कि 0 से पास कर रहा है, कोई भी स्ट्रेट लाइन जो 0 से पास कर रहा है, वो जो है इसका सबस्पेस होगा। और इसका ठीक है, यस सर। और ये जो सबस्पेस होगा ये 1 डायमेंशनल सबस्पेस होगा। ये डायमेंशन हम तुमको बाद में बताएंगे क्या होता है। ये 1 डायमेंशनल सबस्पेस होगा, 0 वेक्टर, ठीक है। उसी तरह से अगर हम 2 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस का बात करें जो कि एक प्लेन होगा, तो कोई भी प्लेन जैसे xy, यहां पे हम लोग xy प्लेन को लिए और वो 0 से पास कर रहा है, ठीक है। xy प्लेन 0 से पास कर रहा है। सिमिलरली yz प्लेन या xz प्लेन को अगर ले लें तो ये तुम्हारा वेक्टर सबस्पेस होगा। और उसी के तर्ज पे अगर हम कोई भी ऐसा जनरल प्लेन लेते हैं जो कि ओरिजिन से पास कर रहा है, दैट विल आल्सो बिकम अ वेक्टर सबस्पेस ऑफ डायमेंशन 2, ठीक है। यस
सो हम लोग देख सकते हैं कि कोई भी स्ट्रेट लाइन जो है वो वन डायमेंशनल सबस्पेस है। कोई भी प्लेन जो ओरिजिन से कट कर रहा है ये टू डायमेंशनल सबस्पेस, और थ्री डायमेंशनल जैसे ही बात करेंगे तो वो क्या होगा कि पूरा का पूरा R3 हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब कि हमारे पास जितने भी टाइप ऑफ सबस्पेस होंगे R3 ओवर R जो है वो खुद में ये थ्री डायमेंशनल सबस्पेस है। स्पेस है, डायमेंशनल स्पेस है। स्पेस मतलब वेक्टर स्पेस। इसका जीरो डायमेंशनल सबस्पेस जो होगा वो सिंपली जीरो वाला होगा। वन डायमेंशनल जो होगा क्या होगा, वो एनी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। टू डायमेंशनल एनी प्लेन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, और थ्री डायमेंशन में भी खुद ही है। ये एग्जांपल सबको क्लियर हुआ? सो अगर हमारे पास हम Rn का अगर एग्जांपल लेते हैं तो अगर n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस अगर है हमारे पास इसकी जगह पर, तो उसका जीरो डायमेंशनल सबस्पेस होगा जिसमें सिर्फ हमारा जो वेक्टर है जीरो वेक्टर है सिर्फ वो रहेगा। वन डायमेंशनल स्पेस हो सकता है जो कि इनफाइनाइटली मेनी सबस्पेस हो सकता है। जैसे कि हम लोगों ने इसमें देखा कि कोई भी स्ट्रेट लाइन अगर हम ओरिजिन से पास कर रहे हैं, there will be infinite number of straight line passing through origin, so it will have infinite number of one dimensional subspace of this R3. Similarly हमारे पास टू डायमेंशनल सबस्पेस जो है इनफाइनाइट नंबर ऑफ टू डायमेंशनल सबस्पेस होगा R3 का। क्यों? क्योंकि हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स है जो ओरिजिन से कट करके पास कर रहे हैं। ठीक है, और फिर हम अगेन जब इसी को ले लेते हैं तो देयर विल बी ओनली वन थ्री डायमेंशनल सबस्पेस ऑफ दिस। तो n डायमेंशन में टोटल कितना हो जाएगा? अगर हम Rn ओवर R का बात करें तो इट इज अ n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस फर्स्ट, और इसमें और इसका जो सबस्पेस होगा वो 0 1 2 n-1 डायमेंशनल सबस्पेस इसका हो सकता है। और उसमें भी पॉसिबिलिटी है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ वन डायमेंशनल, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टू डायमेंशनल, इनफाइनाइट नंबर ऑफ n-1 डायमेंशनल सबस्पेस उसका होगा। ठीक है, और चेक करने का सिंपल सा तरीका जो है हमेशा याद रखना है कि हमें एक स्केलर लेना है फील्ड का, दो वेक्टर्स लेने हैं सबसेट के, कोई भी सबसेट अगर वेक्टर स्पेस का है, और हमें सिंपली चेक करना है KW1 प्लस KW2 whether belongs to S or not। अगर ये सेटिस्फाई हो गया तो सीधे हम कह सकते हैं कि वो सबस्पेस है। ओके, सो आई एम गिविंग यू सम एक्सरसाइज, check whether this is a subspace or not। check if the following are subspace or not। First, S is equal to defined by S1 is defined by X, Y, Z belongs to R3 such that Y is equal to 0. Second, S2 X, Y, Z belongs to R3 such that X into Y equal to Z. Third, S3 X, Y, Z belongs to R3 and X plus Y plus Z equal to 1. S4 X
yz belongs to ry and x plus 2y plus 3z equal to 0. So ये S1, S2, S3, S4 जो है ये चारों हमारा R3 over R का सबसेट है। क्लियर? सबसेट तो है एटलीस्ट। सबसेट होने के साथ साथ क्या है कि ये ऐसे नंबर्स का ऐसा कलेक्शन है कि वो कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे इसमें y = 0 फर्स्ट, सेकंड में x * y जो है z के बराबर होना चाहिए। मतलब कि हम लोग यहाँ पर z के बदले में x * y लिख सकते हैं। ठीक है? यहाँ पर ये कंडीशन है तो यहाँ z के बदले में 1 - x - y लिख सकते हैं। लाइक इस तरह से है, ये लिखना नहीं है, हमें चेक करना है उसी सेम ऑपरेशन से whether these are subspace or not। ठीक है? So this is all for today. Anyone have any question? And one thing more, I have already posted a course outcome for this course, mathematics, and for our topic that we are discussing right now. For CSIT. The course outcome CO5 for our module 5 is to introduce elements of linear algebra, vector space, there is a colon, linear transformation, and hence analyze the rank nullity. This is the course outcome for this topic. So every one of you are supposed to remember this to introduce the elements of linear algebra. Linear algebra is the subject of broad subject where the vector space and linear transform are the elements which belongs to this subject, and hence to analyze the rank nullity theorem. This is the course outcome for this course, and everyone you are supposed to remember this. And similarly, there are course outcomes for the module 1, 2, 3, 4 also. I already posted in the Google Classroom and in the WhatsApp group. You all have to remember the course outcomes. And on 12th of March and 12th, 13th and 14th of March, there will be an inspection team will came into our classroom, means in this virtual online class, and they will ask you about the course outcomes. Okay. So they can pick any single one of you to ask about the course outcomes. So you are all supposed to remember the course outcomes. Okay, this is very much necessary for the accreditation purpose for the electronics and production department. But still, being a student of BIT Sindri from computer science and IT department, you are also supposed to remember this. They might have asked you. It is because the classroom sessions are going on for every student from the same portal. Okay, so on 12th, be ready for this also, and I hope that you all remember the course outcome for the other subjects also, means for physics, chemistry, basic electrical, and likewise. So hence, this is all for today.